Get your name also. Good afternoon, sir. The name. Three question. What's your name? Tell your name first and then. Myself Amit Gule, I'm fourth sem master's student. सर मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है, जब किसी सिविलाइजेशन की रूट जो फिलोसॉफिकल नॉलेज है उसको हम दरकिनार कर देते हैं और एक जो आइडेंटिटी क्राइसिस जो खड़ा होता है, तो सर उस क्राइसिस से हम कैसे निकले? जो बैकवर्डनेस हम फील करते हैं तो उससे हम कैसे निकल सकते हैं आगे? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. My name is Jyoti. I have two questions. Jyoti Mitra. Sir, my first question also addressed by Professor Mohanty and my fellow mate, but I'll like little bit modify it and I'll have to ask it. That you said that there is no link between knowledge and identity creation or identity per se, and there is it when you link it, it creating issues. But how would you say this when I like to draw references from two readings? When 1998 Partha Chatterjee delivered a lecture in Calcutta University on our modernity, and also he has delivered a lecture or produced a article on Anderson's response to Who's Imagined Community. He is talking about this two domain, like outer secular domain in a spiritual domain, and the creation of that Indian knowledge system, and also this Partha Chatterjee. I didn't mention Partha Chatterjee, sorry, sir. Ashish Gandhi, in his intimate enemy, is talking about this indigenous knowledge system. So, how it is happening? Like, why the Indianness is created by this knowledge system? One question. And my second question is from deriving from it that you didn't quite address the knowledge power nexus that the knowledge power nexus that is popularly produced by this Foucault. So, if knowledge is happening to like this, and then this knowledge system came as a response to the colonial power that created Indian power as more of a resistance to the colonialism. So, and now we see 2014 onwards, then there is a stress in Indian knowledge system, particularly Hindu knowledge system, we say, or whatever you want to term it as in. So, why it is happening? Is it because India is still fighting for? We've got a sense of your question. We've got a sense. No, my question is about. No need for the background, just the question. Yeah. So, is it because India is still fighting with the colonialism? Like, is it like we are fighting with the ghost of colonialism, ghost from past? It is indeed a discussion session, but please keep it brief, keep it short and to the point. We want to accommodate as many questions as possible. It will be possible only if you are brief. Sir, my name is Anmol Tiwari. I'm from Department of Sociology. सर मेरा क्वेश्चन है जो आपने 2-3 बार कहा कि डर है जो एकेडमिशियंस इंटेलेक्चुअल्स हो रही है, कालियर का भी आपने नाम लिया, आपने अपने साथियों का भी नाम लिया, तो क्या ये मान लिया जाएगा कि लेक्चर हम लोग उसी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं कि डर एक कांस्टेंट चीज है जो मान के चल रहे हैं? डर किसी का भी हो सकता है, बी स्टेट और अपने पर्सनल एस्पिरेशंस का भी डर होता है, इस कारण से कई चीज नहीं बोलते, तो मान के चला जाए कि डर एक कंटिन्यूअस चीज है जो बना रहेगा, हम लोग इस चीज को काम करेंगे, या कहता स्टेट आ सकता है कि हम लोग लीडर होकर बोल सकेंगे। और दूसरा सर क्वेश्चन वो रीडल से रिलेटेड था जो आपने पूछा, जो अभी हम इंडियन नॉलेज सिस्टम बनाए हैं, क्या बस हमने धड़ को बदला है, सर को लगा दिया है उस पर, वैसे ही चल रहा है कुछ? सो आपने धड़ वही है, सर बदल दिया, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में वही चल रहा है क्या, कि मतलब सिस्टम वही है, धड़ बदल दिया है? Good afternoon, sir. I'm Elsie Singh. And firstly, I really appreciate your point of view and your enlightening speech. So my question to you is, like, how do we integrate the ancient Indian knowledge traditions with today's modern education system, which solely focuses on economic needs and only on technology and modernity? Thank you. गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज दिव्या तिवारी। सर मेरा एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और मेरा पर्सनल डायलेमा भी है। सर हम सभी जानते हैं कि जो जिज्ञासा एक
क्यूरियोसिटी है वो एट दैट फाउंडेशन हमारे नॉलेज का। पर कई बार जब ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती हूँ, बहुत सारे ग्रुप से, बहुत सारे टेक्स्ट से या फिर करंट से जो भी हो रहा है, उसके बाद भी सर मुझे ये फील होता है मैंने नॉलेज गेन कर लिया है, जो कि कूप मंडूक वाली स्थिति हो जाती है कि फ्रॉग इन अ बॉल। तो सर यहाँ पर मेरा ये दिक्कत होती है कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें हम नॉलेज होने में और दूसरा की इन्फॉर्मेशन होने में, और सर दूसरा वो आपका पजल वाला कि एट दैट वो महिला किसको चुनेगी। Only one question per audience, please. Limit yourself just to question. ठीक है, हो रहा है. सर मेरा नाम स्तुति है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारे थियोरी में वुमेन की जगह होने के बावजूद हमारे आज के पॉलिटिकल सिस्टम या फिर पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज में वुमेन को उतनी जगह नहीं मिल रही है। आज भी फेमिनिज्म पे बात करें तो हम वेस्ट से कहीं न कहीं बहुत पीछे हैं। जब हम पीछे अपने टेक्स्ट को देखते हैं, इंडिजीनियस टेक्स्ट को, तो हमें हर जगह एक्सक्लूजन दिखाई देता है। तो कैसे हम पूरी तरीके से उस पर निर्भर हो जाएं या फिर उसको समझें? एक्सक्लूजन महसूस होता है हर जगह। Good afternoon, sir. I have two questions, very short question. एक तो जो अभी भैया ने पूछा कि थर्ड वही है सर बदल दिया about the political theory, and I was following your discussion. I mean the Yogendra Yadav when you were there, the Indian political theory. So अगर ये political theory है तो इसमें तो सभी का अधिकार होना चाहिए, ये किसी एक का नहीं हो सकता, भले वो प्लेटो हो, हेगल हो, वो ना वेस्ट के हो सकता है, भले चाइनीज political theory हो. So why we are using this prefix Indian political theory? I mean, what is the rationale? And the second question that you discussed कि भारत में religious departments universities में ना होना, आपके मैं रिफ्लेक्शन इस बारे में करना चाहता हूँ कि जो करंट पॉलिटिकल माहौल है जिसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि धर्म को लेके कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास की कमी है, तो ये कितना संभव है कि हम उस तरफ को जाए? थैंक यू. Good evening, sir. Thank you for very insightful lecture. प्रश्न ये था मेरा कि इंडियंस की जो लाइन ऑफ थिंकिंग है, उनकी कंटेंट, कैटेगरीज, concepts and communications, when they are completely relying on imposed all these things which are imposed by the Westerners throughout the colonial procedures and experiences. So how can we alienate ourselves from such things? And the second one is कि when you talk about कि through dialogue we can come out of this and we can create a knowledge which can be indigenous, so-called indigenous. But I believe indigenous itself is a derogatory remark for others. So when they have created a superstructure which is basically nurturing their own line of thinking, content, concept. So how, what is the space? हमारे पास क्या space है जब उनके पास उनका communication content, जैसे एजाज अहमद कहते हैं कि हम criticize करते हैं उनको लेके, उन्हीं के concepts और उन्हीं के terms को लेके, तो हमारे पास कितना space है इस dialogue के? Thank you. So we can have your response. Last question. Good evening, sir. It's Ms. Ujada from Faculty of Education, Mrs. Scholar. Sir, I have a question. How can we materialize decolonization in Indian classrooms? And second of all is, how, if we are talking about indigenous knowledge system, how can we align Indian knowledge system with the Western-centric model? Because we are already accustomed to the Western-centric, so in that case, how can we align these two knowledge systems in our Indian curriculum? Thank you. हेलो सर, मेरा नाम युवराज है सर, मेरा एक कंसर्न है और एक हाइपोथेसिस ये सर है, इसको मैं अच्छे से समझ नहीं पाता हूँ कि क्या है। जैसे सपोज करिए हम इंडियन हिस्टोरियोग्राफी को एक लॉन्ग हिस्टोरियोग्राफी के रूप में ले लेते हैं, एंटीक्विटी टू डेट, और जब हम बिफोर कॉलोनियलिज्म जाते हैं, तो जब हम बिफोर कॉलोनियलिज्म जाते हैं तो उस हिस्ट्री को विजिट करने के लिए हमारे पास जो लैंग्वेज है
वो लैंग्वेज प्रेडोमिनेंटली दो लैंग्वेज, एक संस्कृत है और एक फारसी लैंग्वेज। इन दोनों लैंग्वेज में हमारी थियोरेटिकल इनकम्पिटेंसी एकदम अलग टाइप की है। अलग टाइप का ही संदर्भ है। सपोज करिए कोई व्यक्ति अगर इन लैंग्वेज को जानता है तो वो एज ए लैंग्वेज जानता है, रदर देन वो थियोरेटिकल लैंग्वेज जानता है जिसे सोशल साइंस से मीडिएशन कर सकते। और थियरी बिल्डिंग जैसे परिवार कहते हैं कि अगर इसको पिरामिड स्ट्रक्चर में हम देखें तो इंफॉर्मेशन लेवल, एनालिटिकल लेवल और ये थियरी बिल्डिंग रिफ्लेक्टिव लेवल का है। तो क्या ये संभव भी हो सकता है कि ऐसा एक सोसाइटी हमने नर्चर कर दिया है जहाँ जो भी एजुकेशनल सीरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आप 1 से लेकर 12 तक के एजुकेशन को देखिए, जो भी इन लैंग्वेज बेसिकली हिंदी लैंग्वेज में भी जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं वो एकदम डिवास्टेटेड। तो हमारे पास एक एलियन लैंग्वेज है जिससे हम इस तरह के सीरियस हिस्ट्री को रिविजिट कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो सर वो एक डार्क करना। हम मान लीजिए कि हम पढ़ना चाहते हैं गांगेश को, रूप गोस्वामी को, अपनो बुक को, मधुसूदन सरस्वती को, तो इनको कैसे हम ट्रांसलेटेड लैंग्वेज, ओरिजिनल लैंग्वेज, और कोई ओरिजिनल लैंग्वेज ना होने के बाद इवन सपोज करिए कि हम अपने डीन के पास जाते हैं और उनसे हम कहते हैं कि सर हम एक सीरियस कोर्स चाहते हैं भगवत गीता। मुझे लग रहा है कि इनके लिए वो हाईली अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगा कि वो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी में कोई ऐसा स्कॉलर रखते हैं जो उस लेवल पे जाके टीचिंग कर सके जो हम रिफ्लेक्टिव लेवल पे उस समस्या को रिजॉल्व करें। तो कैसे ये टेकल होगा जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारे लैंग्वेज और दैट। Thank you, sir. Your responses. Wonderful questions, and I hope I will be able to address some of them at least. Not that I've answered all of them. I invite you. I also have many questions only. I have been questioning my professors, so this is an ongoing thing. I questioned Professor Randeep Singh, who was my professor, that what do you think of Indian philosophy? He said, there's nothing in that. And when he retired, and from the end of his life, I asked him, कि दोबारा जिंदगी मिलेगी तो अब क्या मिस कर गया आपने नहीं पढ़ पाया? तो he said Indian philosophy. So मैं भी उसी स्टेज पर मेरे सवाल करते करते यहाँ पे पहुँचा, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को भी सवाल ही करना होगा। और मुझे लगता है कि ये रास्ता ढूंढना ही होगा क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है अभी। और एक मैं ये मानता हूँ कि दुनिया को इंडियन फिलोसफी की अभी ज़रूरत है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी किताबें इस पर पब्लिश हो रही दुनिया भर में, और ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज सब लोग पब्लिश कर रहे हैं। हम नहीं काम करता, वो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैंने बताया कि 3 PhD या 4 PhD हुआ है मायाओं के ऊपर, हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। जब मैंने ये सवाल उठाना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि क्या आपने तुम फलसफा पे बात कर रहे हो, और वहाँ PhD बहुत मुश्किल से एक PhD हमने करवाया जो नामघर पे है। आसाम के जो लोग होंगे जानते हैं हमारे नामघर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये सवाल है कि कैसे इसको किया जाए। आई थिंक यू आर राइट सुप्री, यू आर द कोर ऑफ इट, दैट एकांतवाद इज एक्चुअली, एंड गांधी put it, is actually invitation for dialogue, assuming that every partner in the dialogue is equal, and without dominating, you need to engage with that. We all are going to pass it, and all civilizations have developed knowledge traditions. Therefore, there is no point in thinking that we have the knowledge and West does not have the knowledge. I think West has evolved knowledge to some extent, to great extent, but that is not a complete knowledge. They are also in problem. But what they did, they abandoned the idea of ethics and they arrived here. So therefore there is a dialogue that is needed with all traditions. And then we come out, see, East-West का bifurcation हमारा नहीं किया, वो तो उन्होंने किया है। हम तो उनसे कह रहे हैं कि हमें, and neither I am a postmodernist who would say abandon the idea of universal. I am not relativist. I am saying that we should look for new universal, and that universal should always be emergentist universal, always emerging. मैंने एक यूनिवर्सल क्रिएट किया, आपने आके मेरे यूनिवर्सल को क्वेश्चन किया, तो उस क्वेश्चन से डायलॉग करके हम एक नया यूनिवर्सल बनाएंगे और ये कंटिन्यूअसली इवॉल्व करता है।
So therefore there is nothing fixed in that. मेरा प्रॉब्लम उनके साथ है जो कहते हैं कि मेरे पास जो है वो यूनिवर्सल है, तुम्हारे पास जो है वो पर्टिकुलर है, मैं उससे फाइट कर रहा हूँ. So I do agree and we must read Anikanta very seriously and practice that in fact. एक सवाल जो मैं उठाना चाहता हूँ, लैंग्वेज का सवाल आजकल बहुत हो रहा है कि हिंदी अंग्रेजी वगैरह, उसमें मेरा एक पोजीशन है, लोग उससे कंफ्यूज न करें कि लैंग्वेज इज अ मीडियम to access knowledge. We should not force any language on anybody. Thinking is important. In whatever language one can think better. We should be allowed to think in that language. And there should be provision to have a translation, dialogue, engagement. No language is also cultural. So no two cultures will have same kind of concepts and categories. But then we can always, if we take concepts and categories and spectrum of meaning, then probably we can accommodate a lot of meaning. So we should not treat as some people call me Hindi wala, but you are a Hindi wala. I don't think I'm a Hindi wala. I'm only saying that भाई जिसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है उसकी गलती तो नहीं है ना, उसका राइट है जहाँ से पढ़ के आया है, जैसा भी उसका लैंग्वेज है. इसका मतलब नहीं कि अंग्रेजी नहीं जानता तो सोचना नहीं आता. That's not true and that's really problematic, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में जो अंग्रेजी को लेके बायस है उसने हमारे सोचने के अधिकार पर ही कब्जा कर लिया, मुश्किल कर दिया. सोचने का राइट सबको है, नहीं पढ़ाई की है यूनिवर्सिटी में उसको भी सोचने का राइट है, वो उसका बेहतर सोच रहा हो. तो मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ. सो डिफरेंस वो एक इशू है. और ऑन द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी एंड पावर, you know, on the question of identity, I have a formulation. I don't have time to explain the whole thing, but look at it in this way. There are 4 or 5 stages of identity. One is identity identification. ये बहुत नॉर्मल है. मैं बंगाली हूँ और कोई बंगाली वहाँ पे मिलता है, बंगाली बोलता है, तो मैं आइडेंटिफाई करूँगा उसके साथ, कोई बड़ी बात नहीं. मैं यूपी में हूँ और बिहार में कोई मिलता है तो आइडेंटिफाई करूँगा. लंदन में हूँ, कोई पाकिस्तान का भी मिल जाता तो आइडेंटिफाई करूँगा, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन बहुत कॉमन चीज़ है हमारे लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इफ आई आइडेंटिफाई सम नॉलेज सिस्टम देयर इज नो प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कब शुरू होता है जब उस आइडेंटिटी को हम पॉलिटिक्स में कन्वर्ट करते हैं. सो आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन, देन आइडेंटिटी फॉर्मेशन. तब हम एक ग्रुप बनाते हैं, एक फॉर्म करते हैं, अभी हमारा आइडेंटिटी है. उससे इतना प्रॉब्लम नहीं है. फॉर्म करो, क्लब में मिलो, बुक डिस्कशन करो, अपने फिजिकल की किताबों को डिस्कस करो, रिसर्च करने की कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम तब जो आता है जब उसको हम टूल बना देते हैं, एक सिंबल बना देते हैं अपने पॉलिटिक्स का, और उसकी इर्द गिर्द से लड़ाई करना शुरू करते हैं. मूर्तियाँ बनाते हैं लोगों की, फिर मूर्तियों को लेकर पॉलिटिक्स करते हैं बिना उसको पढ़े लिखे. वहाँ प्रॉब्लम शुरू होता है. इसलिए वहाँ के नॉलेज पावर के रूप में ऑपरेट करता है. नॉलेज इज पावर इज नॉट a concept in India. Knowledge is capability is the concept of India. अमर्त्य सेन कहते हैं कि ये बात मुझे पता चली किस ट्रेडिशन से वो आते हैं. तो अमर्त्य सेन नवन्याय ट्रेडिशन से आते हैं. नवद्वीप वाला जो एरिया है ना, बिहार से जब न्याय में बहुत डिबेट हुआ तो कुछ बिहार के न्यायिक एक नया स्कूल फॉर्म किया उन्होंने, जिसे नवन्याय न्याय करते हैं. वो लोग चले गए बंगाल में. तो कबीराज और अमर्त्य सेन दोनों उसी क्षेत्र से आते हैं. तो एक्नॉलेज करते हैं, उसका बड़ा इम्पैक्ट हमारे सोचने के तरीके पे है. तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम नॉलेज को एज कैपेबिलिटी में सोचें. एक बड़ी अच्छी कहानी है, आपने जो पढ़ी होगी, नहीं तो पढ़ लेना जरूर. मंत्र, इसने पढ़ी कहानी मंत्र, प्रेमचंद की कहानी. उस बूढ़े आदमी का नॉलेज पावर नहीं है. उस बूढ़े आदमी का नॉलेज जो है ह्यूमन लिबरेशन के लिए है. उसके लिए शब्द है इल्म. इल्म बेचने की चीज नहीं है. बहुत लोग अच्छे से मिलेंगे तो कहेंगे मैं इसको बेचूं तो बहुत धनी हो सकता हूँ, बेचना ही मुझे अलाउड नहीं है क्योंकि ये इल्म है मेरे पास. जबकि जो डॉक्टर है उसका ज्ञान जो है वो नॉलेज है, पावर है, उसको पैसा कमाना चाहता है उससे. ये डिफरेंस है. गांधी जो क्रिटिक करते हैं हिंद स्वराज के डॉक्टर की, यही क्रिटिक करते हैं. तो उन्हें नॉलेज को पावर बना दिया है, उसको इल्म नहीं मानते हैं. तो नॉलेज हमेशा पावर नहीं माना जा सकता है और नहीं मानना चाहिए. एक सवाल है टेक्स्ट, रिस्क थियरी एंड थ्योरेटिकल टेक्स्ट.
मुझे लगता है कि कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं, why should we so obsessed with theory? Why should we so, कई सुजाता है सोशोलॉजी पढ़ाती है देवी में, वो कहती थियोरी एज सच का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है, ये वेस्ट ने प्रोड्यूस किया है। हो सकता है बाकी सोसाइटी में थ्योरी का कॉन्सेप्ट इतना मर्ज है कि उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, कॉस्ट में सब थ्योरी को ढूंढेंगे। सो इफ थियोरेटिकल रिच टेक्स्ट आर देयर दैट कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम एंड दैट हैज बीन सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में क्या इंटरेस्टिंग चीज है, 3 तरह के टेक्स्ट लिखे जाते हैं। एक टेक्स्ट होता था जो एक एक्सपर्ट अपने ही एरिया के एक्सपर्ट के लिए लिखता था, 10 पेज का टेक्स्ट होता था, उसमें हजारों पेज का कमेंट्री लिखा जाता था। न्याय का जो पूरा टेक्स्ट है, न्याय फिलॉसफी का 10-12 पेज का था, तो एक्सपर्ट उस पर समझना शुरू करता है। एक्सपर्ट लिखता है दूसरे एक्सपर्ट के लिए। एक टेक्स्ट होता था जो एक विषय का एक्सपर्ट दूसरे विषय के एक्सपर्ट के लिए लिखता था, क्योंकि उसके पास कैटेगरी अलग है, समझने का मुश्किल होगा। और एक टेक्स्ट होता था जो एक्सपर्ट लोग आम लोगों के लिए लिखता था। जो उदाहरण में जो सवाल मैंने आपसे पूछा, ये बड़ा कॉमन सवाल है, और ये सवाल पता है किस कहानी से है? बेताल पचीसी की कहानी है। मैं अभी 3 टेक्स्ट पढ़ाता हूँ, बेताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी और पंचतंत्र। कमाल का टेक्स्ट है। मैं गेस करता हूँ क्यों लिखा गया होगा, क्योंकि जिस तरह से रूलर्स रूल करते थे, जिस एथिक्स के साथ, वो कॉमन सेंस कैसे बने, तो कहानियों के थ्रू कॉमन सेंस बन सकता था। उसमें ऐसे सारे बेताल पचीसी में 25 पजल्स हैं और बड़े कमाल के पजल। मैं तो समय नहीं कि मैं पजल्स को बता सकूं, अगर बहुत इंटरेस्टिंग है वो पजल्स। तो इसलिए वो जो टेक्स्ट है, हमने उस तरह का टेक्स्ट करना बंद कर दिया, स्टोरी राइटिंग। इतने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जो अपने विषय में कहानियां लिखना चाहते हैं, कोई तो आम लोगों से संवाद कैसे करेंगे आप? पंचतंत्र में क्या होता है? राजा कहता है कि मेरे बेटे मूर्ख हैं, किसी ने कह दिया उसे सब मूर्ख हैं। मूर्खता, यौवन, धन संपत्ति और प्रभुत्व चारों में से कोई भी एक साथ हो तो बर्बाद कर सकता है। चारों से अकेला भी बर्बाद कर सकता है, चारों एक साथ तो क्या हुआ समझ लो। तो राजा ने कहा कि भाई कोई पढ़ा दो मेरे बच्चे को। एक बंदा आया जो 80 साल का बुआ था, उसने कहा मैं सब पढ़ा लिया, तुम्हारी संपत्ति के मैं क्या करूँगा? राजा का बहुत संपत्ति दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। और फिर उसने कहानी लिखी थी, और मैंने हाल में डिस्कवर किया दिस इज सपोज्ड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टेक्स्ट टू कौटिल्य अर्थशास्त्र। These are 2 complementary texts, so you can understand कौटिल्य अर्थशास्त्र through पंचतंत्र also। हमने क्या किया, उसको चीज फाड़ के अलग कर दिया। सारी कहानियां अलग अलग हम जानते हैं, तंत्र को नहीं जानते हैं। ये पंचतंत्र है, 5 तंत्र है जो कंप्लीट स्टोरी है, और हम एक एक कहानी को जानते हैं और फिर उससे पूछा जाता है बताओ इस कहानी का वर्णन क्या है। तो हमने पूरे सिस्टम को ही डैमेज किया है। सो इसमें इस वेस्ट के बारे में बात करें सर, आप देखिए, मुझे लगता है कि ये रिवर्स ओरिएंटेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन दैट वी हैव ऑलरेडी स्पोकन। सिविलाइजेशन भूख और फिलोसफिकल नॉलेज का जो सिविलाइजेशन भूख है और कॉन्फिडेंस की कमी है हमारे अंदर, उसको कैसे डील करें? पहला सवाल किसी ने पूछा है। वी नीड टू हैव कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कैन ओनली बिल्ड विद कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हमारे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब हम चाहते हैं कि कोई दूसरा हमें एक्नॉलेज करे, रिकॉग्निशन चाहिए, किससे? विदेशी यूनिवर्सिटी में रिकॉग्निशन चाहिए। विदेशी जर्नल में पब्लिश हो गए तो बहुत अच्छे हो गए। मेरा सवाल उल्टा रहता है कि तुम्हारे काम का हमारे लोगों के लिए क्या उपयोग है? इसका एक इवैल्यूएशन प्रोसेस होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में सिस्टम बनाना चाहिए कि आपने जो रिसर्च किया है उस किसके काम आ रहा है, उस पर एपीआई डिसाइड करना चाहिए। तुलसीराम भी हमारे यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने आत्मकथा लिखी मुर्दैया। मैंने एक बूढ़ी महिला को दिया जो कि अपर कास्ट की थी, वो पढ़ के रोने लगी। उसने कहा कि मैं जितनी जिंदगी मेरी बची है मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। ये इम्पैक्टेड टेक्स्ट था, दैट शुड बी इवैल्यूएटेड, और वही हमें कॉन्फिडेंस दे। एक ही ऐसे कॉन्फिडेंस को वो फॉल्स कॉन्फिडेंस है।
लेकिन अब है उसको क्या कर सकते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी ने तय कर दिया है जो चीज no link between power, knowledge and identity. I think, as I said, there is a link between power and identity, knowledge and identity, but that link should not be converted into identity politics of knowledge. क्योंकि identity politics of knowledge जैसे ही हम करेंगे, हम other create करेंगे, exclusion करेंगे. Identity का क्या लॉजिक है? जैसे बताई कई स्टेज है. आखिरी स्टेज में क्या होता है? Create an other. The more we attack the other, more we consolidate ourselves. इसलिए हम अटैक करना शुरू करते हैं. तो नॉलेज के साथ अटैक करने के बदले यदि आपके पास सब कुछ नॉलेज है, तो उसका लिबरेटिव डायमेंशन को आप बताइए कैसे लिबरेट होगा. एंड नोबडी विल से नो टू योर नॉलेज इफ इट लिबरेट्स यू. मैं अभी बीमार हूँ और आपको मुझे पता चले कि आपके पास एक नॉलेज जो मुझे ठीक कर सकता है. आप इंग्लैंड से हो कि अमेरिका से भी, फ्रांस से, कोई फर्क पड़ेगा क्या मुझे? या हरिद्वार से या ऋषिकेश से मुझे ठीक कर दो, मुझे नहीं चाहिए. तो मुझे लगता है नॉलेज इज लिबरेटिंग थिंग. सो देयरफॉर ये जो नॉलेज पावर नेक्सस है, ये नेक्सस कैपिटलिज्म का खेल है. तो कैपिटलिज्म नॉलेज को कमोडिटी बना दिया है और हम लोग भी अपने नॉलेज को कमोडिटी का यूज करना चाहते हैं. पाइथागोरस के स्कूल में जब कोई पढ़ने जाता था और पूछता था कि जो आप नॉलेज दे रहे हो उससे क्या फायदा होगा, तो पाइथागोरस कहते कुछ पैसे दे के इसको विदा करना, कि नॉलेज से फायदा कमाना चाहता है. तो नॉलेज फायदे की चीज नहीं है. बट ऑफ कोर्स हमें नौकरी वोकरी करनी है, वो तो जिंदगी चलाने के लिए करना पड़ेगा. बट दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सोर्स ऑफ नॉलेज. वो इंफॉर्मेशन साइंस चाहिए इंटरव्यूज में. इसलिए मैं कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल साइंस में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं है. उस नॉलेज से जो नॉलेज आपके कहते हैं या विद्या थोड़ा विमुक्त है. विद्या तक विद्या है, किसी की मुक्ति आप कर सकते हो नहीं है, जानना चाहेंगे. अपनी मुक्ति तो आपने सारी वाली लेके कर ली, लेकिन दूसरे किसी काम की आपको नॉलेज आ रहा है नहीं आ रहा. किसी ने मुझसे पूछा आप क्या पढ़ाते हो, मेरा पॉलिटिकल साइंस. मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं फिर क्या करते हैं, मैंने कहा वो फिर पढ़ाते हैं जगह जगह जाके. कमाल चीज पढ़ाते हो आप, पढ़ाते हो फिर वो पढ़ाते हैं. ये कौन सा काम करते हैं? तो कोई यूज ही नहीं करेगा. इनफैक्ट वी आर सो irrelevant that state can throw us in the street anytime and the people will say nothing. And if we go with the degree that we have to the people, कोई एक पैसा दे दो तैयार नहीं. थैंकफुली स्टेट कुछ दे देता है. तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करें, हमारे नॉलेज को कैसे वैसा बनाए कि वो लोगों के लिबरेशन के काम, ह्यूमन लिबरेशन के काम. अनमोल एक डर जो है ना, ये डर मुझे लगता है थियराइज करने की जरूरत है. हमारे पॉलिटिकल थियरिस्ट लोगों ने अपने डर को थियराइज नहीं किया. डरते क्यों हैं और उस डर से मुक्ति कैसे होगा? मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ चाहिए नहीं तो मेरा डर खत्म हो गया. इसलिए मैं जो मर्जी बोल रहा देखा जाएगा जो. तो ये डर तभी होता है जब हम कुछ चाहते हैं, और ये चाहना जो है ये इतना ज्यादा है, मुझे पता नहीं लोग इतना क्यों चाहते हैं. बहुत कुछ चाहते हैं, इतना चाहते हैं इसलिए सीमा ही नहीं है. चाहते ही जा रहे हैं. तो वो जो कंज्यूमरिज्म हमारे अंदर घुसा है, वो कंज्यूमरिज्म भी एक डर को पैदा करता है. और जो बौद्धिक स्वतंत्रता होनी चाहिए हमारी, जो एकेडमिक फ्रीडम है हमारा, वही डर को खत्म करता है. और उसके लिए एजेंसी करनी पड़ती. मेरे ख्याल से गांधी का डर क्यों खत्म हो जाता था? आप सोचिए, नवाखाली में मारकाट मचा हुआ है. गांधी वहाँ जाते हैं, बिरला जी कहते हैं कि आपको आदमी भेजते हैं आपको सेवा के लिए. वो कहते हैं मुझे नहीं कुछ कर जाएगी, मैं अकेला ही जाऊँ. उनका डर क्यों नहीं रहता? कभी डरे नहीं. क्यों? क्योंकि चाहिए नहीं था कुछ भी. गांधी जब लोग कहते हैं, मेरी कोई दोस्त की ग्रैंड मदर से बात होती थी, बताती थी कि जब गांधी उपवास करते थे, उनके गांव में लोग उपवास करते थे. गांधी बना रखा है बीएचयू, डरे नहीं कह रहे जो कह गए बीएचयू को उद्घाटन में, एनिमेशन नाराज हो गए. और किसी जमींदार के बच्चे का जन्म हुआ था, उसको छठी वट्टी कुछ था, उसने गांधी को बुलाया. तो उस बच्चे को बहुत सोना से लादा गया था, तो होता जाएगा. तो गांधी ने कहा इसका घर घूम जाएगा, सोना निकालो. सारा सोना निकालो तो कुटरी बांध के लेके चल.
उसको कोई डर नहीं लगा तो क्या कहेगा और ना किसी को हिम्मत हुई कि तो कह नहीं कहाँ ले जाते ये डर मुझे लगता है कि वहीं से निकल सकता है बेरोजगार नहीं क्या बेरोजगार नहीं the assertion of our is the core idea. Once we start asserting our agency, I think we will overcome that fear. भारतीय बुद्धिजीवियों की समस्या है कि कमीशन के बहुत परेशान है कोई रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बहुत दिक्कत है हमारे साथ जब मैंने हिंदी में किताब लिखी तो लोगों ने जाके मत पब्लिश कर रहे क्यों तो तुम्हारा हमेशा हिंदी में नाम लिया कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा मैंने कहा मैं घर में रहा मुझे लोग पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा है मैं क्या करूँगा अमेरिका के प्रोफेसर को पढ़ा उनको ऐसे मेरी जरूरत नहीं जिनको जरूरत है वो पढ़ ले सो दैट यू हैव टू डू आई थिंक एंशिएंट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन एंड शिवम कैन यू जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन शिवम is Shivam here? Knowledge. That's somebody asked. I think information is a necessary thing for knowledge, but not sufficient. What do we do with that? How do we use the information to create knowledge is something that we are not training our university. हमारे यूनिवर्सिटी का जो पूरा सिस्टम है स्कूलों का पूरा सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम है अब तो पता नहीं क्यों दिल्ली के हिंदुस्तान में प्रॉब्लम पीएचडी के एडमिशन के लिए इंफॉर्मेशन बेस्ड एग्जाम होता है कमाल है उनको भी वो रट के आते हैं वहाँ पे और जब बहुत स्कोर लेके आते हैं जब बात हमारी होती है तो पता चला कि कुछ भी नहीं आ रहा है कुछ आगे नहीं कर पा रहे ये इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से हमारा प्रॉब्लम है कहीं हमें उससे निकलना पड़ता है कैसे उसको कन्वर्ट करें कैसे हम खुद की लाइफ में उसको लाएं दिस आई थिंक वी हैव टू थिंक ऑफ यस Shruti, women and individual feminism, right? That's a big question. I think on the question of feminism, our feminists have not approached the traditions properly. All traditions have been exploitative and hierarchical anywhere in the world. Why it happens? When you produce a knowledge, there is a ruling class which uses the knowledge for its benefit. What Ambedkar says, religion of principles and religion of rules. So we really have to get into the principle of things. So if I am saying all human beings are creative beings, they have immense potential to be creative, are women not human beings? So raise this question. So therefore, probably at some stage, patriarchy has used all possible resources to construct an idea that has to be broken. If any idea is not for universal human liberation, that must be abandoned, as simple as that. Whichever tradition it belongs to does not matter. I think more idea to examine traditions is this one. Be it women, be it physically challenged, be it the bottom, the last person of society. So I think Marxists often stated that liberation of one, or freedom of one, should be guarantee of freedom of all. And freedom of all should be guarantee of freedom of one. That is very dynamic idea to re-examine all philosophies and all theories. Sorry, just take 2 more minutes and I think. How can we separate this political theory universal? I think I already answered that question. That we should look for new universal, emergentist universal. We are also struggling with the idea whether it should be political theory of India or should be political theory from India. We kept debating for 10 hours on this idea. 2 professors were debating and we all kept debating. We are not sure at the moment. How should we call it political theory or not? Is there a need to call it political theory?
Or is it that we have very different kind of critical theory? I am at the moment of the opinion that we are dealing with critical theory which has to be universal, and whatever theory comes from India should enter a dialogue with other theories, and we are creating new universes. That's what I would suggest, but yes, that's a problem. And Department of Religion, why we don't have confidence in creating Department of Religion in this present situation? I'll go by Gandhi. Gandhi was saying in Hind Swaraj कि religion सबको जरूर पढ़ाना चाहिए. पढ़ाएगा कौन? तो मौलवी और पंडित को पढ़ाने नहीं देना चाहिए. I want the Englishman to teach religion, Hinduism. Alternate करना. एक हिंदुइज्म को इस्लाम वालों को पढ़ाना चाहिए, इस्लाम को हिंदुइज्म वालों को पढ़ाना चाहिए. Let them do it. That's called trans-critique. Very interesting concept by Kozin Karatani, a Japanese philosopher. But thinking through the other. Let them be thinking through the other, a critical thinking through the other. Yes, that's very important question that there is a superimposed structure. अभी जो जनतंत्र जो भी चल रहा है सब ऊपर से जो कॉन्सेप्चुअल कैटेगरी सब बाहर के हैं, हमारी इंडिजिनस कैटेगरी से क्या हम उसको समझ सकते हैं? I think that's a genuine problem, and that's where the negotiation is needed. We need to analyze even democracy is our own category. So I've tried to understand how to look at democracy with the help of this new concept of human nature. It's possible. If that gives better dimensions, better issues, I think we should pick that up. If it doesn't, then we'll move on. Decolonizing the Indian classroom. I think the first decolonizing that should be done in the classroom. Change the structure of the class, make it a round table. It's a power structure. When I come to the class and the audience is sitting there and we are talking, and symbolically, I think. So it's been, we use one. So if it is more interactive and if we कई सारे इसमें हो सकते हैं, जैसे बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल है, एक टीचर से बनारस में बड़े विद्वान हुए, तो जब वो यहाँ आए, ओझा थे वो यहाँ के जयपुर के पंडित हुआ करते थे, इनको लगा कि मैं बहुत कम जानता हूँ, काफ़ी बड़े विद्वान माने जाते हैं, उनसे कहा कि हमें अशिष्ट बना दो, उन्होंने कहा अशिष्ट नहीं बनाने, बनाते नहीं, अगर किसी कीमत बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा एक ही शर्त है, मैं जो दिन भर, पहली बात तो ये 5 साल तक तो मेरे घर से हिलोगे नहीं, कहीं जाओगे नहीं। दूसरी बात ये है कि जो मैं रात दिन भर पढ़ाऊंगा, रात में बैठ के लिखोगे और सुबह मुझे दिखाओगे। अभी क्या हो रहा है, क्लासरूम में आधे लोग अभी आते हैं, आधे लोग अगले दिन आते हैं, और ये आप पूछ रहे पिछले क्लास में क्या पढ़ाया गया, तो ज़्यादा तो लोग नहीं आते। Learning process has to change. I think decolonization has to be done not only in the concepts and categories, but also in the teacher itself. There is something somewhere problematic. If we can, I'm not sure how to do it, but I enjoy teaching outside the classroom. गोल करके बैठ जाते हैं, पतंजलि जी में स्ट्राइक हो जाता है, तो क्लासरूम में नहीं हो सकता है, तो लोग बाहर मैदान में बैठ के पढ़ते हैं। I really enjoy sitting here. और एक रुमाल छोड़ खेलते रहते बैठ जाते हैं, and then everybody becomes equal. So somewhere I think this power structure in the academia has to be broken. Sanskrit Farsi, Kaviraj also says that if you want to do anything new in India, any fresh generation has to be done, you must learn Sanskrit and Persian. That's his idea. But I think there is a question that I have: why Sanskrit and Persian intellectuals could not